Okay, so hi friends, my name is Dr. Sami, and this is the first lecture of research methodology. तो इस लेक्चर में हम जानेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है, क्या क्या कंटेंट्स हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम कवर करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट going to start this course like the this is topic research methodology. I would like to brief about the research. What is the actual research is? Okay. So, what is the meaning of the research? The research is the discover to answer the intellectual and practical problems through the application of the scientific methods. So, if we talk about the research, so somewhere it is the basically to find out something which is not discovered yet, or to find out the solution of any problem, right? So there are many scientists who give their opinion. Uh, they have given different definitions of the research. So if we talk about the Redman and More, so they say that the research is the systemized effort to gain the new knowledge. एक ऐसा effort जिसकी वजह से हमें knowledge मिलता है. And एक्चुअल में स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि रिसर्च इज बेसिकली डूइंग द वर्क इन द लैब. So mostly it is basically the collection and analyzing the information, like the information, or you can say it as the data, in order to increase our understanding of phenomena which was concerned or the interested. So it is somewhere it is the systematic process जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. और जो भी इंटरेस्ट है, सपोज आपको किसी भी टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है, तो आप उस पे आप काम कर सकते हो. यू कैन डू द सम रिसर्च ऑन इट. So this is the basically also definition of the research. That is the meaning of the research. But what is actually research? So it is the process of finding the solution to a problem. जैसा मैंने बताया कि कोई भी solution है, किसी भी problem का solution find out करना, it is a part of the research. And after through the study and the analysis of the situation fact, उस प्रॉब्लम या फिर उस स्टडी से रिलेटेड जो भी सिचुएशनल फैक्टर है उसको एनालिसिस करना, उसको जानना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च. इट प्रोवाइड्स द नीडेड इंफॉर्मेशन दैट गाइड्स द मैनेजर टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू द सक्सेसफुली डील विद द प्रॉब्लम. लाइक अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल डू द रिसर्च, यू विल डू द सम वर्क ऑन इट, एंड on the basis of the research you will get the some results and some of the solution. ऐसा होता है कुछ मैनेजर्स या फिर कई भी कंपनियों में, जो है कि अगर हम कोई कंपनी भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू डू सम रिसर्च. ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च यू विल स्टार्ट योर कंपनी, यू विल स्टार्ट योर वर्क. एंड once you will start your work and the company, that it is a better manner, and that is will show the better effective, the better results. So the information provided could be the result of the careful analysis of the data. Obviously, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको जो भी डेटा है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा. एंड व्हाट टाइप ऑफ द डेटा यू विल टेक, किस तरह का डेटा आपको चाहिए. ये डेटा कुछ भी हो सकता है जो ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है, या फिर कुछ डेटा जो कि आप गैदर करोगे, जैसे कि कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट. सो now the question is that what is the objectives of the research? So if we talk about the objectives, so there are the various type of the objective. The main purpose of the research is to discover answer through the application of the scientific process. किसी भी solution, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को पता लगाना, या फिर कोई भी नई चीजें डिस्कवर करना, वो भी एक कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस या फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको उनके एप्लीकेशंस के थ्रू अगर हम कोई चीज पता लगाते हैं, दैट इज आल्सो द पर्पस ऑफ द रिसर्च. अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स लाइक द एक्सप्लोरेटरी और द फॉर्मुलेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च. अगर मैं फॉर्मुलेटिव या फिर एक्सप्लोरेटरी की बात करूं,
So to gain the familiarity with the phenomena or achieve the new insight in किसी भी नई चीजों को जानना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट इज अ टू पोर्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स और द सिचुएशंस और द ग्रुप. किसी भी ग्रुप, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी टॉपिक्स को आप इलाबरेट करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक्स को आप बहुत ही डीप में जानना चाहते हो, सो यू हैव टू डू सम, यू हैव टू गो थ्रू द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डायग्नोस्टिक की बात करें तो डायग्नोस्टिक मोस्टली समवेयर इट सीम्स लाइक द द हॉस्पिटल्स, द क्लिनिकल रिसर्च. तो अगर मैं डायग्नोस्टिक की बात करूं, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी कॉज, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, दैट इज द बेसिकली द पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक रिसर्च. एंड somewhere it's determined the frequency with which something occurs or which it is associated with the something else. कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दैट द व्हाट इज द मेजर कॉज एंड व्हाट इज द रेदर देन द कॉज, मेन कॉज, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे अभी एक एग्जांपल है, लाइक सपोज यू वांट टू नो व्हाट टाइप ऑफ द वायरसेस हैव बीन इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड वायरस. No one knows what type of the viruses was infecting to the any patient. तो अगर हम वायरसेस की बात करें तो ये वायरसेस कहीं ना कहीं कोविड वायरसेस से भी रिलेटेड था, सॉरी, कोल्ड वायरस से भी रिलेटेड था. तो कोल्ड वायरस, डायनो वायरस जो होता है, वो क्या डिफरेंस है जो कि कोविड वायरस को डिफरेंस बनाता है, एंड व्हाई दे आर डिफरेंट. सो मेनी साइंटिस्ट हैज वर्क ऑन इट, बहुत सारे साइंटिस्ट पे काम किए, उन्होंने ऐसा कुछ फाइंड किया जो कि कोल्ड वायरस या फिर राइनो वायरस से डिफरेंट था. सो दैट वाज द पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च. तो उन्होंने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला किसी भी कॉज का, किसी भी प्रॉब्लम का, जो कि पहले पता नहीं था. बट यस, दे गॉट द सोल्यूशन, दे गॉट द diagnosis of the COVID-19 with the help of the real-time PCR and all. So this is the diagnostic research. Hypothesis testing research. So if we talk about the hypothesis, to test the hypothesis of the causal relationship between the variables. Now the question is that what is the variable? दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है what is that is known as one is independent variables, right? One is independent variables and one is the dependent variables, right? So one is the independent variables and another one is dependent variable. So what is the independent variables and what is the dependent variable? इसको जब हम आगे पढ़ेंगे, so I'll brief about the variables, the different type of the variable. Hypothesis की बात करें तो अगर आप कोई प्रॉब्लम के बारे में आप जानना चाहते हैं, you want to do the research on any problem, then यू हैव टू डू सम वर्क. और आप जो काम कर रहे हो, जो आप रिसर्च कर रहे हो, किस डायरेक्शंस में कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग. आप वो जो डायरेक्शंस है जो काम कर रहे हो, सो दैट इज द बेटर डायरेक्शंस, यू आर डूइंग द इन द राइट डायरेक्शंस. सो दैट इज द बेसिकली द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथेसिस यू विल कीप द हाइपोथेसिस. आपने कोई हाइपोथेसिस दिया और समटाइम्स यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस. सो मे बी, हो भी सकता है जो आप हाइपोथेसिस दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उस जो आप हाइपोथेसिस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है. तो कुछ भी हो सकता है. तो अगर मैं बात करूं हाइपोथेसिस की, तो ये दो तरह से हो सकता है. इट इज द नल हाइपोथेसिस एंड अदर वन इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो अगर हम रिसर्च की बात करें, तो अगर हाइपोथेसिस रिसर्च की बात करें, सो इट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ एनी वेरिएबल्स. ये कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है. इनके बीच का जो रिलेशंस है, जो इनके बीच का रिलेशंस है, अगर उसको फाइंड आउट करना है, इनके बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या चेंजेस आ रहा है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है. So it shows in the hypothesis testing. Got it? Okay. Now the next characteristics of the research. So these are the characteristics.
There are the many characteristics of the research, like it should be directed towards the solution of any problem. हमारा जो पर्पस होना चाहिए रिसर्च का वो सोल्यूशन होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का। ये ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज आल्सो नोन एज द एम्पेरिकल एविडेंस। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके कुछ एविडेंस होने चाहिए, वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी काम किया और वो थोड़ा सा सही भी नहीं है बट यू आर कैरी फॉरवर्ड दैट दैट वर्क, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो ये एक्यूरेट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन, राइट। ये जो भी द इट इज आल्सो इन्वॉल्व द गैदरिंग द न्यू डेटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेस और यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। तो जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे वो कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है वहां से आप गैदर करोगे, राइट। या फिर कोई भी प्राइमरी डेटा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है वहां से आप जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द केयरफुल डिजाइन प्रोसीजर्स। ऑब्वियसली अगर आपने रिसर्च में टाइम कम करना है, रिसोर्सेज को कम लगाना है, सो यू हैव टू फॉर वेरी केयरफुली, बिकॉज आपका जो भी मेथोडोलॉजी होगा इट डिपेंड्स द ऑन द मेथोडोलॉजी द प्रोसेस, हाउ मच टाइम्स यू विल स्पेंड। सो बहुत ही केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा जो भी प्रोसेस है। एंड यू रिक्वायर द एक्सपर्टीज। कुछ काम के लिए आपको बहुत ही अच्छे एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, सो यू हैव टू नो द टेक्निक्स। आपको टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से सीख सकते हैं, किसी से जान सकते हैं। तो इट आल्सो रिक्वायर द स्किल्स नेसेसरी टू द कैरी आउट एंड इन्वेस्टिगेशन। एंड इट आल्सो सर्च द रिलेटेड लिटरेचर्स एंड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द कलेक्टेड डेटा, राइट। ये जो भी नॉलेज मिलेगा रिसर्च से रिलेटेड हमें मिलेगा वो लिटरेचर से। जो भी लिटरेचर है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो उस लिटरेचर से हमें पता चलेगा कि उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है दैट यू विल गेट फ्रॉम द लिटरेचर। आपको पता करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा जो भी डेटा कलेक्शन है विद हेल्प ऑफ द सम स्टैटिकल टूल्स, राइट। तो आपको ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। रिसर्च इन द ऑब्जेक्टिव एंड द लॉजिकल, apply the every possible test to validate the data collected and the conclusion। आपको जो भी टेस्ट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इट में बी समटाइम्स इट विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट्स और द नेगेटिव रिजल्ट्स। तो आपको कैरी करते रहना, आपको काम करते रहना, बिकॉज once you will start the work, so you will collect the data, you will work on it, and you will conclude something, right? You will get something which is relevant to your research work. So research involve the quest. What is the meaning of the quest? एक ऐसा जर्नी जो कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही लंबा है, जिसको अचीव करने के लिए बहुत ही मेहनत करने की जरूरत, राइट। तो रिसर्च एक ऐसा जर्नी है जो कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एंड इट इज टाइम टेकिंग, इट इज रिसोर्स टेकिंग, इट इज इट इज वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। सो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेना जो कि हमें पता ही नहीं है, हम उसके लिए पीछे काम कर रहे हैं, हमें वो चीज के बारे में जानना है। सो वी हैव टू यूज सम द क्वेस्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेस्ट। आपको बहुत ही हिम्मत की जरूरत है, यू नीड सम करेज फॉर द वर्क of the need the courage for the research, and it also need the patient. Patient means very careful research, conduct a very careful research, not in the hurry, बहुत ही जल्दी में नहीं करना है, बहुत आराम आराम से करना है। तो दैट इज बेसिकली द करेक्टरिस्टिक। और जो भी रिकॉर्ड मिले, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे वो बहुत ही केयरफुली रिकॉर्ड करके रखना, बहुत ही उसको केयरफुली रखना, बिकॉज दिस इज द ऑल अबाउट योर हार्ड वर्किंग एंड द टाइम टेकिंग वर्क, राइट। तो आपको जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करके रखना है, उसको रिपोर्ट करना है, राइट। उसको अच्छे तरीके से रखना है, बिकॉज वंस यू विल कंप्लीट योर रिसर्च आपको वो सारे डेटा चाहिए। मे बी वो डेटा किसी और, अगर आप उसको किसी रिसर्च पेपर में पब्लिश करना चाहते हैं या फिर अच्छे पेटेंट पे ले जाते हैं तो हो सकता है वो रॉ डेटा मांग लिया जाए, या फिर जो भी डेटा आपने रिकॉर्ड किया वो उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो दैट इज बेसिकली द करेक्ट ऑफ रिसर्च। अगर मैं मेथड्स की बात करूं, साइंटिफिक मेथड्स की बात करूं, तो ये बेसिकली इट इज बेसिकली द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक नॉलेज व्हिच मेक्स द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू एक्वायर द नॉलेज इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ। किसी भी फील्ड में, नॉट अबाउट द साइंस ओनली, बट अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस रिफर टू द बॉडी ऑफ द सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये एक एक ऐसा ऐसा जो है कि
नॉलेज है जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही ऑर्गेनाइज है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे साइंटिफिक मेथड को यूज करके हम कोई भी नॉलेज को अ, ले सकते हैं, जान सकते हैं। एंड साइंटिफिक मेथड्स की बात बात करें, सो इट इज बेसिकली द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ द डेटा। ये एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है किसी भी डेटा या फिर फैक्ट्स को कलेक्ट करना, एंड देयर थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट थ्रू द प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रहे हो तो आप बहुत ही जो है कि कैजुअल वे में इसको करो। यू हैव टू डू सम वेरी सिस्टमैटिक मैनर, उसको डेटा कलेक्शन करना, उस जो भी थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट है उसको देना है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे, आपको एक्सपेरिमेंटेशन लगाने पड़ेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट आएगा उसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशंस यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट, योर कंक्लूजन। And the methods attempt to achieve the systematic interrelations of the fact, like the experimentation, observations, logical equipment, and these things are the basically required for the any scientific. क्या क्या पॉस्टुलेट्स होने चाहिए साइंटिफिक मेथड्स में? सबसे पहले ये एम्पिरिकल एविडेंस होता है, सो इट रिलाइज ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी डेटा मैनिपुलेट किया और उस पे आप उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हैव टू हैव द ऑब्जर्वेबल डेटा। आपको जो भी अब डेटा का आपके पास होगा वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, वो इम्पीरिकल होना चाहिए, वो एक एविडेंस काम करेगा जब भी आप इसको इन फ्यूचर यूज करेंगे। उस जो भी कंसेप्ट है उसके रिलेवेंट्स होना चाहिए, जो भी आप काम करो, इट शुड बी द वेरी रिलेवेंट टू द कंसेप्ट। इट इज कमिटेड टू द ओनली द ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन। ये भी जो भी इट इज कमिटेड टू द एनी ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन, एंड ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर द प्री सपोज ऑफ द एथिकल इंटीग्रिटी। ऐसा नहीं है कि आप अनबायस्ड नहीं सोच सकते हैं, आपको एथिकल चीजों पे भी ऑनेस्टी, नो इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करके रहना है। रिसर्च जो भी एथिक्स हैं उसको मेंटेन करके रखना है। एंड इट रिजॉल्व्स इन द प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन, समटाइम्स इट वर्क्स लाइक हम कुछ कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस पर भी काम करता है साइंटिफिक साइड। जो भी मेथोडोलॉजी है आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा मेथोडोलॉजी बना लिया जो कि आपके बारे में नोन ही नहीं है, तो इट विल डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द एनी रिसर्च। एम टू फॉर्मुलेटिंग द साइंटिफिक, जो भी थ्योरीज है वो उस जो है कि उसको साइंटिफिक थ्योरी जो है उसको एम करके उसको देख के काम करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा रिसर्च है या फिर एक अच्छा रिसर्च नहीं है, या फिर न्यूट्रल रिसर्च है, कैसा रिसर्च है? इट डिपेंड्स द क्राइटेरिया। व्हाट आर द क्राइटेरिया? जो भी पर्पस है क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। आप जब भी कोई रिसर्च करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे निकलना है। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर होना चाहिए। एक ऑर्थर ने बोला था कि अगर एक प्रॉब्लम पता चल जाए तो 50% जो है कि काम, 50% रिसर्च का काम आपका इजी हो जाता है, बिकॉज यू नो द प्रोसेस, यू नो द प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम। रिसर्च जो होता है प्रोसेस डिटेल्ड होना चाहिए, इट इज नॉट इन इन एनी ब्रीफ्ड मैनर। सो आपको एक डिटेल जो कि प्रोसेस होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन थ्रोली प्लान, पहले से ही प्लान करके रखो, अदरवाइज क्या होगा, एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद आप डेविएट हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि आप किस डायरेक्शन में काम करना है। तो इसलिए आपको जो भी प्लान करना हो सकता है टाइम टेबल बहुत ज्यादा टाइम ले ले, बहुत ज्यादा आपका रिसोर्स कंज्यूम हो जाए, तो उसकी उसको कम करने के लिए यू हैव टू हैव द प्रॉपर प्लान। वेरी हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाई, जो भी आप काम कर रहे हो वो एक एथिकल एथिक्स पे काम होना चाहिए। अब एथिक्स क्या होता है इन नेक्स्ट, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ब्रीफ करूंगा व्हाट इज द एक्चुअल द एथिक्स इन द रिसर्च, बट एक्चुअली इट शुड बी द वेरी एथिकल। लिमिटेशंस फ्रैंकली रिवेल, जो भी आपके लिमिटेशंस है, जो भी प्रॉब्लम आने वाला है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें कुछ भी जो है कि हाइड करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू प्रॉपर नो द लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च। प्रॉपर एडिक्वेट एनालिसिस फॉर द डिसीजन मेकर्स नीड, आपको जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इट शुड बी एडिक्वेट। ऐसा नहीं है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा और क्विक लेना पड़ेगा। फाइंडिंग वेयर द प्रेजेंटिंग क्लियरली एंड विदाउट एनी, किसी भी गलत रिजल्ट्स को हम आपको नहीं ले जाना है। यू हैव टू प्रेजेंट वेरी क्लियरली विदाउट एनी एनी एम्बिग्विटी। जो भी कंक्लूजन है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। दैट इज अ गुड रिसर्च। रिसर्च एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट, ऑब्वियसली
ऐसा होता है कि कभी कोई रिसर्चर स्टार्ट में काम करते हैं, दे समटाइम्स पैनिक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द एक्सपीरियंसेस। और वो एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं? काफी टाइम तक जब आप काम करते हो आपको ट्रबल शूटिंग, अब वो ट्रबल शूटिंग अगर आपको पहले से पता है, देन आप काम को इजीली और कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे काम आता है आपके एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिसर्च। सो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, बट इट वुड बी द टाइम टेक। तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर कलीग्स, यू कैन टेक योर हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, राइट? नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च? क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल? इट इज ऑब्जर्वेबल डेटा। रिप्लिकेबल होना चाहिए। अगर आप एक रिसर्च कर रहे हो, ट्राई करो कि एक दोबारा से अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो दोबारा से वो सेम रिजल्ट जो मिल रहे हैं पहले में वो दूसरे में। सो क्रिएटिव होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर आप कोई काम कर शुड बी द क्रिएटिव। बहुत सारे मेथड्स को यूज करके काम कर, ऐसा नहीं कि आपने एक मेथड पे काम किया और उसी मेथड्स पे जो है आपने फाइनलाइज कर दिया कोई भी डेटा। सो यू हैव टू यू यूज द मल्टीपल मेथड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल? ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी इलॉजिकल रिसर्च करने लगे जिसपे आप रिसोर्स भी वेस्ट कर दिया आपने, मनी भी वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, कुछ भी आप पकड़ के आप रिसर्च नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव द वेरी लॉजिकल थिंग। सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक के बाद एक सिस्टमैटिक और वेरी स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, तो आपका काम जो है टाइम पे हो सकता है। व्हाट नीड फॉर द रिसर्च? एक्सप्लोरेशन, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। Describe, it should be described, it should be diagnosed, it should be the hypothesis, induction and deduction. So these are the some need of the for the research. Now the question, what is the scope of the research? क्या है scope? मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे research क्यों करना है? So these are the some risks, like it helps in the decision making. रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी जानकारी रखना पड़ेगा। अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ द एनी एक्शंस, इकोनॉमिक्स यूज ऑफ सोर्सेज, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसके लिए आपको जो भी काम कर रहे हो इट शुड बी डिसीजन। any problem like solve the investment problem. Suppose you want to do some investment in any stock market, so you have to have the knowledge, you have to do this research on the topics on the any stock market, right? So ये solve करता है, that is used in the any investment problem. Pricing problem जो है उसमें भी काम करेगा। Allocations problem, solving decision making issues in the HR, solving the various operational planning problems in the business and industry. ऑब्वियसली बिना रिसर्च के आप कोई भी इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक वे, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद रिसर्च। आप किसी भी काम करने से पहले आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इससे क्या प्रो का है क्या कौन सा है, सभी चीजें आपको जानकारी। इट प्रोवाइड द बेसिक फॉर ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी। जो भी आप काम कर रहे हो ये आपको ये नजर में रखना पड़ेगा, लाइक ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी इसमें आ जाए, वो भी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी या इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कोई हार्म ना हो। एंड इट हेल्प्स सोशल साइंटिस्ट स्टडी द सोशल। जो भी आप काम कर रहे हो ये आप दूसरे साइंटिस्ट को भी हेल्प करें, राइट? एंड इट द स्टूडेंट्स रिसर्च मीन्स द कैरियर और द वे टू अटेन द हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट्स, जैसे आप अगर आप इसको रीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ चीज को सीख रहे हैं ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें इन इन द नियर फ्यूचर। प्रोफेशनल रिसर्च की बात करें, इट इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द एनी सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड। अगर मैं फिलोसफर की बात करूं तो नए आइडियाज और इंसाइट्स के बारे में जो भी नई चीजें हैं उसके बारे में सोचना, दैट इज द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ दिस। लिटरेरी मैन क्या करेगा? इट विल डेवलप द न्यू टाइप ऑफ द स्टाइल, क्रिएटिव वर्क्स, नए तरीके से कोई भी जो है कि वर्क्स को क्रिएटिव वर्क जो है कि करेगा। एंड एनालिसिस ऑफ द इंटेलेक्चुअल द रिसर्च में द जनरलाइज ऑफ न्यू, नए नए थ्योरी को जनरलाइज करना, नए नए थ्योरी को जानना, दैट इज पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ दिस। क्या प्रॉब्लम हो सकता है रिसर्च में? देयर आर द मेनी प्रॉब्लम्स यू विल फेस्ड इन द प्रॉब्लम। इट इज नॉट सिमिलर टू द साइंस, राइट? एंड अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वेरिएबल्स मिलेगा जो आप चाहते हैं वैसा मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो अनकंट्रोल्ड होंगे। ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। टाइम एंड मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास पैसा और समय दोनों ही इंपॉर्टेंट। तो आपको दोनों ही जो है कि रिसर्च में
कहीं ना कहीं लगने वाला है. So you have to maintain the static manner and strategy. You have to maintain the proper strategies for the any research so that you could reduce the time. Lack of computerizations ये भी एक प्रॉब्लम है. अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा. आज तो एआई आ गया. एआई इज रिड्यूसिंग द टाइम, राइट. सो पहले के टाइम पे ये होता था, लैक ऑफ कंप्रेशन, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, द मेथोडोलॉजी. बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक ट्रेनिंग है, जैसे हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वी डोंट नो द एक्चुअल मेथड्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड. सो वी हैव टू नो द नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक. This is very important, like the insufficient interactions between the university research department and the business. Suppose you are doing the some research and you don't have any application of the research. आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे इंडस्ट्री तक नहीं ले जा सकते, that is a very big challenges of the research. इसको एक इंडस्ट्री तक, एक बिजनेस लेवल तक ले जा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को. ये आपके नॉलेज में होना चाहिए जब आप रिसर्च स्टार्ट करें. तो ये बहुत सारा देखा गया गैप मिलता है बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट एंड द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट. And the lack of the confidence on the part of the business unit to build options, right? Lack of the conduct of the code and difficulty to adequate time in the system. So these are the some type of like the poor library management and function. हम सही तरीके से उसको रख नहीं पाते. कभी कभी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हमको रखना मुश्किल हो जाता है, उसको उसको रिपोर्ट बनाना मुश्किल. डिफिकल्ट इन द टाइमिंग अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिश. इग्नोरेंस, बहुत सारी चीजें हम अगर इग्नोर करें, दैट जॉर्गन वेरी इंपॉर्टेंट. Sometimes we started the work on which is not required actually. And sometimes the research, the sake of the research, limited practical utility, and they may be high sounding the business. Governance मतलब एक gap, एक ऐसा incorrect things which is can be seen in the business. Obviously, I have already discussed in decision making, it's selecting the best alternative from the available set of alternatives. Management with the concern and the decision making and implementations. अगर मैं बात करूं इसके रोल ऑफ रिसर्च इन डिसीजन मेकिंग, इट इज अप्रोप्रिएट स्टडी इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. तो नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल गेन करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज अ वेरी. These are the some factors. So qualitative factor, the uncertainty factor, which is also play the problem research. Now the type of the research I'll brief in the next class. So that's all for the today's class. I hope you understand. If you did, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो आप लिंक में जा सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं. डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. इन नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रीफ अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च. कैसे हम रिसर्च के प्रोसेस है, जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, hypothesis, methodology, data collections, and statistical tools also used on helping. So that's all for the today's class. Thank you.